will be no prophet after him. In the terminology of Sharia, Islamic law, having this faith is called faith in Khatm Nubuwwat. Belief in Khatm Nubuwwat is one of the basic and important articles of faith. From the Holy Prophet ﷺ's time to this day, every Muslim has the belief that Hazrat Muhammad ﷺ is the last Prophet of Allah without any doubt. Dear fellows, 100 ayahs of the Holy Quran and the Arabic Hadith, 210 ahadith proves Khatm Nubuwwat. The first consensus of Muslim opinion, ijma, took place on this issue. So, Hazrat Maulana Sayyid Muhammad Anwar Shah Kashmiri Rahmatullahi Alayhi writes in his last book Khatm Nubuwwat that translation and the first consensus of Muslim opinion was the consensus on the murder of Musaylima Kazzab. Its only reason was just his claim of prophethood. The reverend Sahaba radiallahu anhu, the companions of the Holy Prophet ﷺ came to know about his other evidence later. As Ibn Khaldun writes, and ages after ages, there was always consensus on the infidelity, apostasy, and killing of the claimer of prophethood. And there was never debate on the Nubuwwat, Tashriya on non-Tashriya. Despite the divine texts of Mirza Ghulam Ahmad Qadiani, founder of Jamaat Ahmadiyya, introduced himself as the last prophet who is blasphemous and false. The disciples and followers of Qadianism have a mission to make a proof of Prophet Muhammad ﷺ doubtful in the eyes of uneducated and poor Muslim communities. They propagate that there was a scope of a prophet to come and validate the claims made by Mirza Ghulam Ahmad Qadiani that he is the last prophet and thus make innocent people realize their faith. The fundamental aim of our ulama is to eradicate this every effort and protect the faith of those innocent Muslims who are pulled into their falsehood of Qadianism and defend the seal of prophethood. Dear fellows, we are Muslims and we should be well aware of the propaganda and deceptions of these Qadianis, especially Muhammad Bilal bin Jamaluddin, Hussain bin Saeed Qulub, Muhammad Shayan bin Javed, Waqas bin Irshad, Ismail bin Maulana Ibrahim, Muhammad Ayyan bin Anwardar, Ayyan bin Nasir Rose, Rayyan bin Danish, Muhammad Amir bin Laik Khan, Abdullah bin Ismail, Muhammad Abdul Basit bin Haji Lukman Sahab। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो 54 तलवाए कराम थे, 55 तलवाए कराम जिन्होंने इस मदरसे के अंदर अपने कुरान के हिफ्ज़ को मुकम्मल किया और अब ये आगे अपनी तालीम को जारी रखेंगे। और यकीनन ये खुशकिस्मती है उन वालिदैन की जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान के हिफ्ज़ के लिए वक्फ किया था, जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान के लिए फारिग किया। और ये खुशनसीबी है उन तमाम असातिज़ा कराम की जिन्होंने अपने इन बच्चों को अपना समझा और इनके लिए हर तरह की हर मुमकिन कोशिश की और इन्हें आज हाफिज़ कुरान बनाया। और तमाम वालिदैन जो आज यकीनन फख्र महसूस कर रहे होंगे कि उनके तलबा, उनके बेटे, उनके भाई यहाँ पर आए और आकर उन्होंने कुरान को हिफ्ज़ किया। यकीनन जिस तरह से वो अभी अपना फख्र महसूस कर रहे हैं तो वो कल बरोज़े क़यामत भी इन्हीं हुफ़ाज़ की वजह से उनके लिए जो है वो हुफ़ाज़ कल बरोज़े क़यामत, कल बरोज़े महशर के अंदर भी जो है वो इनकी निजात का इनके लिए खुशकिस्मती का ज़रिया होंगे कि वो इनकी जो है वो अपने एतबार से इनकी हर मुमकिन जो इनसे कोशिश होगी वो करेंगे। और जिस तरह वालिदैन ने इनकी मदद की, इनको यहाँ पर छोड़ा और हिफ्ज़ कुरान इन्होंने किया, तो यकीनन दाद और तहसीन के मुस्तहिक़ वो तमाम लोग जो इदारे के साथ हर मुमकिन ताक़ुब करते हैं, जो इदारे के साथ मुखलिस होकर इन बच्चों को अपना बच्चा समझकर इदारे के अंदर जो है वो अपनी हर तरह की कोशिशें करते हैं, उनको भी इनका पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है। और कल बरोज़े क़यामत यही तलबा, यही हुफ़ाज़ उनके लिए भी बाइस निजात, बाइस ज़रिया होंगे। क्योंकि कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम है
और यही वो अल्लाह का कुरान है कि जो किताब हिदायत है, जो अल्लाह की आखिरी किताब है। और इसका जिंदा मौजूदा ये है कि जहाँ पहाड़ों को उठाने से इसे इनकार कर दिया था, वहीं ये छोटे छोटे हुफाज आज इसको अपने सीनों के अंदर लेकर आज अपने वालिदैन के लिए एहसान तकरीम का बाइस बन रहे हैं। और कुरान का ये एजाज है कि इन छोटे छोटे बच्चों ने इसे हासिल कर लिया है। और ये किताब जिस सरजमीन पर नाजिल हुई, जब उन लोगों पर नाजिल हुई तो उन लोगों को फर्श खाक से रोज सरिया तक पहुंचा दिया था। तो वहीं जहाँ ये बच्चे आम तालिब इल्म की हैसियत से जाने जाते थे, आज इसी कुरान की बरकत से ये हाफिज कुरान, हामिल कुरान बन गए। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है कि इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़उ बिही आखरीन। और तारीख गवाह है कि जब तक मुसलमानों ने इस कुरान की अज़मत को समझा, जब तक मुसलमानों ने इस कुरान को अपना समझा और इसके अंदर आने वाले अहकामात के ऊपर अमल किया, इसके अंदर बताई जाने वाली हिदायत को अपना जरिया बनाया, अपना रास्ता बनाया, तो मुसलमान जो है वो मुअस्सिस से ज़माने में मुसलमान होकर और फार हुए तारीख़ कुरान होकर वो मिसाल बन गए। जब जब मुसलमान कुरान के साथ जुड़े रहे, जब जब मुसलमान कुरान की हिदायत के मुताबिक जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजारते रहे, तो कुरान उनके लिए बाइस निजात और जरिया बनता रहा। और आज जब हमने कुरान को छोड़ दिया, अज़मत कुरान को छोड़ दिया, तो ये हमारे लिए ये हमारे लिए एक पैगाम है। मैं वो इंस्टाग्राम मेरे हर एक को पागल कर रखा है, इसको और इसको और बिला से मैं पूरी दुनिया में बच्चे बूढ़े और जवान सारे आगे और मुझे तो आप जानते ही नहीं। मैं हूँ फेसबुक, ये सोशल मीडिया का दौर मुझसे शुरू हुआ है। सुना है वो दिन दूर नहीं जब सारी दुनिया हमारी गिरफ्त में होगी। तो चलो देखो। शर्मा रहेगा, कोई रिहर्सल नहीं करा। आप मुझे याद करा देंगी मगर मैं भूल गया, आप ही याद करा दें प्लीज। बेटा आप अपने वालिद से पहले फोन मत दो। अस्सलाम वालेकुम अबू जान। अबू जान कल मेरा प्यार है, मुझे कोई समझ नहीं आ रहा, आप ही कुछ करा दें। यार अम्मी जान ने अब्बा जान ने मना कर दिया, अम्मी जान से पूछ के देखो। अम्मी जान आप ही कुछ पढ़ा दे। ओहो चलो बेटा आप अपने कमरे में जाओ, कोई आ गई। मोबाइल ही देख लेता हूँ।
हेलो हसन। जी हाँ। कहाँ हो? मैं घर पर हूँ। अरे जो जी लेते हैं। ओके ओके ऑनलाइन हो गए सब्जी को बच्चा पीछे जाओ पीछे पीछे जाओ पीछे और वो सही नहीं हो रही खड़े हो जाओ सबको दिखेगा सारे लोग सामने आए थे कैसे ठीक है मैं जामिया फवाद से बात कर रहा हूँ उसकी तबीयत अचानक खराब बिगड़ गई है तो आपसे दूसरा ठीक है वो मदद में अच्छा मौलवी साहब आगे चले गए ना काफी
माशाल्लाह आपके बच्चे को बहुत बैठा चंद दिनों से उसकी तबीयत में सुस्ती सी लगी हुई है। जी जी दरअसल में सबक सबकी और वजूद बहुत सुना रहा है। अच्छा ये जो विभाग है से इसका इस्तेमाल करना शुरू किया इसकी हालात मुसलसल बिगड़ती जा रही है, क्या वजह है? इसमें बच्चों को तो मोबाइल देना ही नहीं चाहिए। शायद मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से आपके बेटे की हालत खराब हुई है। लेकिन याद रखें कि मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से वक्त का बहुत ज़िया होता है। हादसा और नज़र कमज़ोर हो जाती है और सोचने समझने की सलाहियत कम हो जाती है, जिसकी वजह से नींद पूरी नहीं हो पाती और जिस्मानी नशोनुमा का फर्क पड़ता है। इसी वजह से तालिब इल्म अपना काम वक्त पर मुकम्मल नहीं कर पाता। इस वक्त इसे आपकी प्यार की जरूरत है। कैसा वक्त है ये? कैसा वक्त है कि हमने रिश्तेदारों से ज़्यादा सोशल मीडिया पर वक्त गुजारना शुरू कर दिया है। हम सोशल मीडिया पर इतना वक्त दे रहे हैं, हम ये बात भूल चुके हैं कि दरअसल सोशल मीडिया हमें इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए हम में से हर एक को चाहिए अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें, उन्हें सोशल मीडिया से दूर रखें और उन्हें मोबाइल कम से कम इस्तेमाल करने की इजाज़त दें। बिल्कुल कर सकते हैं। अल्लाह मेहनत करता है कभी भी अपने बच्चों को बिना से हमला नहीं पाया है। मुझे ये ऐसा बात नहीं आता आगे मैं आपका तमाम लोगों को बताना चाहता मैं अभी नहीं हाफिज़ मोहम्मद मुनीर बिन मोहम्मद लायक खान, हाफिज़ उमर फारूक बिन उबैदुल्ला, हाफिज़ मोहम्मद आरिफ बिन राज मोहम्मद, हाफिज़ मोहम्मद अनस बिन तलहा, हाफिज़ मोहम्मद साहिल बिन अफजल खान, हाफिज़ मोहम्मद खान बिन गुलाब सईद, हाफिज़ नासिर बिन फजलबाज, हाफिज़ नसीम बिन अलीबाज, हाफिज़ मुजम्मिल बिन लाल बहादुर, हाफिज़ मोहम्मद बिलाल बिन जमालुद्दीन, हाफिज़ हुसैन बिन सईद बुलूक, हाफिज़ मोहम्मद शायान बिन जावेद, हाफिज़ वकास बिन इरशाद, हाफिज़ इस्माइल बिन मौलाना इब्राहिम, हाफिज़ मोहम्मद अयान बिन अनवरदार, हाफिज़ अलियान बिन नसीर रोज़, हाफिज़ रैयान बिन दानिश, यासिर बिन फजलबाज, हाफिज़ मोहम्मद आमिर बिन लायक खान, हाफिज़ अब्दुल्ला बिन इस्माइल, हाफिज़ अब्दुल बासित बिन हाजी लुकमान साहब। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो तमाम तलबा इकराम थे, ये 55 तलबा थे जिन्होंने कुरान करीम की हिफ्ज़ मुकम्मल किया और इनको इनामात दिए गए। इसी तरह वो तलबा जिन्होंने एक दिन में मुकम्मल कुरान करीम सुनाया, उनके लिए भी इदारे की तरफ से खुसूसी इनाम है, वो भी दिया जाएगा। इसके बाद मैं उन तलबा का नाम लूँगा, वो दोबारा आएंगे और अपने खुसूसी इनाम भी हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से वसूल करवाएंगे। ये आया एक बच्चे के बाद ये आया ये रहा बिलाल। चलिए अब नीचे आ रहा है। अब मैं उन तलबा का नाम लूँगा जिन्होंने एक दिन में मुकम्मल कुरान करीम सुनाया था। उनसे गुजारिश है कि वो दोबारा आए और अपना खुसूसी इनाम जो है हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से वसूल फरमाएँ। हाफिज़ मोहम्मद आमिर बिन लायक खान, ये वो तालिब इल्म हैं कि जिन्होंने एक दिन में कुरान करीम सुनाया और बगैर किसी गलती से
इनके लिए खुसूसी इनाम जो है छोटा बच्चा उड़ा दिया। माशाल्लाह, सब लोग माशाल्लाह कहते हैं। ये वो यकीनन ये वो लम्हात होते हैं जो वालिदैन के लिए एजाज़ का ज़रिया होते हैं, और ये चीज़ देखकर हमें फ़ख्र होता है कि हमारे तलबा, हमारे बच्चों ने जो है वो कुरान का महफूज किया। यकीनन जिस तरह ये बच्चे यहाँ अब इस महफिल के अंदर अपने वालिदैन के लिए एजाज़ और तकरीम का सबब हैं, तो कल बरोज़ महशर भी अपने वालिदैन के लिए ये वसीला बनेंगे उनकी बख्शिश का, उनकी निदात का। ये आज़ाद कश्मीर के वो है ना, असेंबली के मेंबर। हाँ, बहुत अच्छा बोले ये। हाँ अच्छा बोले। और ये सैयद इमरान। हाफिज मोहम्मद आमिर बिन लायक खान तशरीफ लाए और अपना खुसूसी इनाम वसूल फरमाए। हाफिज मोहम्मद सनीम, हाफिज मोहम्मद नसीम बिन अली। The chain of prophethood from Hazrat Adam alayhi salam.